तो इन टॉपिक्स में जो हमारे पास है इसमें कोई डाउट, कोई खास? प्लीज स्टूडेंट्स, आकाशी, गुरलीन, गुरनीत, चंदन, रुप्रीत. No, sir. So the first one is, what is electric current? So electric current की हमने definition पढ़ी है, I is equal to Q by T, means rate of flow of charge is known as electric current. So it is the electric current. स्क्रीन आपको विजिबल है सबको? Yes, sir. The electric current is defined as the charge flowing through any section of conductor in 1 second. So I is equal to Q by T, or I is equal to dQ by dt. Q by T when charge is steady means constant, and dQ when charge is variable. Next is different type of current. We have three type of current. First is steady, then is variable, and alternating. Please note out the graph for different type of current, which is very important as it can be asked in one mark question. The next one is conventional current. The current whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field, positive to negative. Next is drift velocity, the most important topic of this chapter. Drift velocity, it is the average velocity with which electron move from one point to another point. So it is defined as the velocity with which free electron get drifted. Why drifted? Because it moved in the opposite direction to the applied electric. तो जब जैसे हम किसी व्हीकल को ब्रेक लगाएं और फिर भी व्हीकल मूव करता रहे तो ड्रिफ्ट होती है, स्लिप कर जाता है. सो बाय द सेम मैनर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्सप्रेशन आप लोगों ने किया था इसका. The relation between electric current and drift velocity is I is equal to A and E Vd. The relation between electric current and drift velocity is I is equal to A and E Vd, where A is a cross-sectional area of conductor and number of electrons, E charge on electron, and Vd is the drift velocity. Any doubt? No, sir. The next one is current density and Ohm's law. By the same manner as density is, Chandan, what is density? Chandan is there? Chandan, define density. Akasi. Gurneet. Density is mass upon volume, and when we are discuss about current density, then it is I by A, means the current through a area of conductor. So J is equal to I by A. By the relation between current
एंड एरिया वी हैव I इज इक्वल टू ए एन ई बी डी, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए के साथ ए कट जाएगा, तो J इज इक्वल टू एन ई बी डी, और वेक्टर फॉर्म में I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट इज Ohm's law, ग्रेड 10 में भी आपने पढ़ा है। Ohm's law, द पोटेंशियल और द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मींस जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, मींस जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता जाएगा, तो पोटेंशियल जो है वो भी साइड बाय साइड इंक्रीज होएगी। सो I इज प्रोपोर्शनल टू V, और V is proportional to I, so V is equal to IR. The next is resistance. Resistance means to resist or to stop the flow. So resistance, it is the obstruction offered to the flow of current. By Ohm's law, V is equal to IR. So R is equal to V by I. इसका जो एक्सप्रेशन है उसे नोट करिए जल्दी से। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ कंडक्टर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेट नंबर 3 था जो इस साल का, उसमें क्वेश्चन था कि शो डैट उसमें क्वेश्चन था कि प्रूव Ohm's लॉ बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये देखिए R इज इक्वल टू रो I बाय ए, तो यहां से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ कंडक्टर। डन। Rupreet, Yes, sir. so the next one is relation between drift velocity, current density, current, electric field, and potential. Please note it down. Then we will move further. ये सारा नीचे टेम्परेचर डिपेंडेंस तक नोट कर लीजिए सारा कि हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जब आप लिखोगे कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, हमने डिस्कस किया था क्लास में ये
कि रेजिस्टेंस का मेन रीजन होता है कोलिजन बिटवीन फ्री आयंस। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो कोलिजन होगी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी साथ में चेंज होना शुरू कर देगा। किस तरह से चेंज होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि पाथ जो है चार्ज के फ्लो करने का वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, दिस इज इन अ लेमन लैंग्वेज, विद द इंक्रीज इन temperature, the collision between free ion is increases. Due to this increase in the collision, internal energy and relaxation time is decreases, and with the decrease in relaxation time, resistance increases. और relaxation time में हमने पढ़ा था, relaxation time, it is a time between two successive collision of electrons. कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं उसके बीच में जो टाइम रहेगा, दैट टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन। प्लीज नोट इट डाउन। ये सारा पेज जो है ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और जो पीछे हमने किया रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों पेजेस को प्लीज सीरियसली नोट करिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जब नोट कर लो तो बताना मुझे। डन हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो द नेक्स्ट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये मैंने आपको बताया था, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइट। सो रेजिस्टेंस को देखिए, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड। जो थर्ड बैंड होगा वो मल्टीप्लायर होगा, और जो लास्ट बैंड होगा वो टॉलरेंस होगा कि वो कितना टॉलरेंस कर सकता है, कितने परसेंट टॉलरेट कर सकता है। So the first two ring or the first two band give the first two significant figure of resistance in ohm, and the third ring indicate the decimal multiplier, and the last ring indicate the tolerance in percent about the indicate value. तो इसे आप नोट करिए सारा टेबल, और जो साथ में दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उसे भी नोट करिए। तो जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं प्लीज बताइए, सो दैट हम आगे कर सकें। रुप्रीत, चंदन, नकाशी और बाकी सब, कहीं भी डाउट है तो प्लीज बता दें। हम बहुत स्लो चलेंगे इस चैप्टर पे, क्योंकि इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स बहुत पोर्शन कम कवर होता है। सो प्लीज डिस्कस वेयर एवर एंड व्हेन एवर यू नीड। अब जो भी कोई सेल होगा उसमें केमिकल यूटिलाइज करेंगे हम, तो जो वो केमिकल है
वो डिसोसिएट होंगे आयंस में। हमने पढ़ा है करंट कैरियर, सॉलिड के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन और लिक्विड और गैसेस के केस में फ्री आयन, और गैसेस के केस में फ्री आयन अंडर हाई प्रेशर। तो ये जो फ्री आयंस हैं ये आपस में बम्बार्ड करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जो कि सेल के इंटरनल होगा क्रिएट। तो उस रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब कौन कौन से फैक्टर हैं कि कितना डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, more the length of electrolyte through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance. Greater the conductivity of electrolyte, lesser is the internal resistance of cell. The internal resistance of cell is inversely proportional to common area of electrode dipping in the electrolyte. And the last relation जो है हमारे पास I is equal to E by R plus R. कैपिटल आर वो रेजिस्टेंस है जो हमने सर्किट में अप्लाई किया हुआ, और स्मॉल आर वो रेजिस्टेंस है जो सेल के अंदर। तो ये दोनों सीरीज में है तो ये आपस में एड अप हो जाएंगे। सो आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। प्लीज नोट इट डाउन। आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, तो इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा साइड बाय साइड। और जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं तो हो सकता है कि आपके इंटरनल मार्क्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो अच्छे से टेस्ट को प्रिपेयर करिए। जितने आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे इंटरनल एग्ज़ाम में, उतना ज़्यादा आपके फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स हो। सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर इंटरनल असेसमेंट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो। इन सब के बेसिस के ऊपर आपके फाइनल मार्क्स जो है वो वेरी करेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। सर मंडे वाला टेस्ट एमसीक्यू होगा? मंडे वाला टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट होगा? सॉरी, एमसीक्यू टेस्ट होगा मंडे वाला? हाँ हाँ, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके सर। मंडे आपका होगा फिजिक्स का टेस्ट, और मैथमेटिक्स का आपका रहेगा थर्सडे को। मैं पूरे का पूरा जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो आपको भेज दूंगा, क्योंकि मंडे हमारी 2 क्लासेस हैं, प्रो क्लासेस, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। एक में रिवीजन चलेगी, दूसरे में आपका टेस्ट चलेगा। सिमिलरली जैसे आज 2 क्लासेस हैं, तो इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल की वर्कशीट व्हाट्सएप पे अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कंटिन्यूटी में 2 जूम क्लासेस से आप भी रेस्टलेस हो जाएंगे, और पॉसिबल भी नहीं है इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है। मंडे फिजिक्स, थर्सडे मैथमेटिक्स, और बाकी की मैं डेट शीट आपको शाम तक शेयर कर दूँ। क्लियर? Yes, sir. और प्लीज पूरे एफर्ट्स के साथ इंटरनल असेसमेंट आपने देनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सिनेरियो चल रहा है, हमें नहीं पता सीबीएसई क्या करते हैं लास्ट में, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट इसी असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बने। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में। कोशिश करो अबव 85% तक जाने की, क्योंकि जिस हिसाब से
पोजीशन चल रही है, ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि 70 मार्क्स के इंटरनल और 30 मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो फिर वो जो इंटरनल है वो आपके इंटरनल असेसमेंट इसी तरह से जाएगी, कुछ टेस्ट से, कुछ जो हम एक पेपर लेंगे उसमें से। सो प्लीज बी पर्टिकुलर और सीरियस होकर टेस्ट दीजिएगा सभी के साथ। कोई डाउट तो डिस्कस करो मेरे साथ। तो प्रीत, सबको बड़ा अच्छा चांस मिला है कि अबाउट 90-95 तक आप मार्क्स ले सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर जुलाई या अगस्त मिड में सिलेबस भी आ जाएगा। कितना सिलेबस है? एज पर न्यूज़ 33% सिलेबस जो है वो कम हो जाएगा। तो 33% सिलेबस भी अगर कम हो गया तो समझ लो कि हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो आप जितनी बार चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो। So please be very particular.